Dear students, welcome back to our Indo-European YouTube channel. Today we have Ruchi Bala, who is basically from New Delhi and received her residence permit card for Sweden. So first of all, Ruchi, many congratulations Thank you. here for your residence permit. Okay, so starting from your academic background, Ruchi, what you have studied? Well, I completed my bachelor's in computer science. After that, I decided to do my further study in master's. So I chose Sweden for my further studies. Okay, so in Sweden, in which university and for which course you have applied? Well, in Sweden, I applied in a Stockholm University, and course name is Masters in Computer Science, and the duration of course is 2 years. 2 years, right? Okay, and what is the fee structure of this university? The fee structure of the university, the per semester is around 65,000 SEK, and in Indian currency that is around 5 to 6 lakh. Okay, so the overall budget for this program for which you have applied is approximately 20 lakhs, right? Yes. All right. Okay, so Ruchi, starting from the admission process, how was your admission process with this Stockholm University? Like, did they have any kind of eligibility test, any kind of interview or anything like that? I submit my all academic documents and all my certificate, like IELTS certificate, which I have gained 6.5 overall 6.5 band, and which is really, I think, helpful to for my secure the admission. Yes. Yeah, because students, if you have any additional English language proficiency document, just like IELTS examination or in TOEFL score or in PT score, so it of course provides an advantage from a basic profile to a different profile in securing the admission, as well as sometimes it works for the visa as well. Yeah, so did they have any kind of any interview, any test also? No, I don't have any such kind of interview or test. Okay. So रुचि, अगर मैं बोलूँ कि एडमिशन लेटर का फाइनल लेटर आने का जो आपका ओवरऑल ड्यूरेशन था, तो वो कितना था? It was approximately 2 to 3 months. ठीक है. And so 2 to 3 months में आपका एडमिशन लेटर आ गया था, राइट? yes. आपने कब इंडो यूरोपियन विजिट किया था? जनवरी में, राइट? एंड वी आर सिटिंग इन द मिड ऑफ जून नाउ, और अब आपके हाथ में वीज़ा भी है, राइट? ओके, सो स्टूडेंट्स, जैसे रुचि ने बोला दैट इट टुक अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 months टू गेट द फाइनल लेटर. हाउएवर द मेजर जो जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं या जितनी भी कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे ओवरऑल प्रोसेस जो है टू गेट द फाइनल लेटर इज़ एटलीस्ट 1.5 month तो लगता ही है आपको एडमिशन आने में, राइट? स्वीडन का जो वीज़ा है मेजरली डिपेंड करता है आप ऑनलाइन फाइल कैसे सबमिट करते हो, राइट? तो कुछ कंट्रीज़ ऐसी भी हैं जहाँ पे सारा का सारा पेपर वर्क है, राइट? बट कुछ कंट्रीज़ ऐसी जहाँ पे आप ऑनलाइन सबमिट करते हो, जस्ट लाइक डेनमार्क है, फिनलैंड है, स्वीडन है. सो यहाँ पे पहले आप ऑनलाइन फाइल सबमिट करते हो, राइट? तो जब ऑनलाइन फाइल सबमिट करी थी, अब इस टाइम पे मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी, जब मेरी इंडो यूरोपियन टीम ने आपकी ऑनलाइन फाइल सबमिट करी होगी, राइट? सो एट द टाइम ऑफ सबमिटिंग द एप्लीकेशन और इवन बिफोर सबमिटिंग द एप्लीकेशन, क्या क्या और किस किस तरह से इन्होंने आपको गाइड किया? लाइक कोई फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन देने हैं या कुछ डॉक्यूमेंट्स एजुकेशनल देने हैं, क्या सेकेंडरी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं आपके वीज़ा में? इंडो यूरोपियन ने मुझे बताया कि आपको कैसे फ़ीस पे करनी है और कितने फ़ंड्स आपको चाहिए अपने अकाउंट में. जैसे इन्होंने मुझे बताया 9 लाख आपके अकाउंट में होने चाहिए, और ये एक दिन पुराने फ़ंड भी हो सकते हैं. और जब मेरा ऑफ़र लेटर आ गया तो मैंने अपनी फ़ीस पे कर दी, एंड उसके बाद फाइल इन्होंने मेरी फ़ाइल सबमिट की लास्ट मंथ, एंड आफ्टर 1 week I received my decision, and it was positive decision, and within 15 days I received my visa card also. ओके, सो स्टूडेंट्स, रुचि से जितना हमने बात करी एंड जो रुचि बोलना भी चाहते हैं, आई बिलीव वो यही है कि अगर हम वीज़ा की अब बात करें तो वीज़ा के लिए स्वीडन सबसे अच्छी कंट्री क्यों लगती है स्टूडेंट्स को और क्यों प्रेफरेबल है? रीज़न बीइंग, यहाँ कोई स्पॉन्सर के डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, कोई 3 महीने पुराना पैसा नहीं चाहिए, 1 day ओल्ड फंड्स एक्सेप्टेबल होते हैं. येस स्टूडेंट्स, यू हर्ड राइट. फ्रेश अकाउंट ओपन करवा के अगर एक दिन पहले भी आप पैसा इन करते हो तो स्वीडन में आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो एंड सक्सेसफुली कार्ड आपके पास आएगा भी. ओके, देन जो मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ है आज की डेट में, अगर आपका कोर्स कब से स्टार्ट हो रहा है रुचि?
28 अगस्त 28 अगस्त से कोर्स स्टार्ट हो रहा है एंड वी आर इन मिड ऑफ जून और आज ही रुचि के हाथ में रेजिडेंस परमिट का कार्ड है। वो क्यों है? क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, जैसे ही एडमिशन लेटर आता है वो थोड़ा सा लीनियंट हो जाते हैं, नहीं अभी हमारी ट्यूशन फी की डेडलाइन बची है, हम उस टाइम पे करेंगे। देन ट्यूशन फी पे करने के बाद भी दे आर नॉट बहुत ज़्यादा अगर मैं बोल लूँ कि इस चीज़ को प्रॉम्प्टली आंसर्स नहीं देते हैं इन प्रोवाइडिंग देयर वीज़ा डॉक्यूमेंटेशन। तो पहला आपका एडमिशन टाइम पे अप्लाई होना, सेकंड इज़ ट्यूशन फी टाइमली पे करना, एंड थर्ड इज़ गेटिंग रेडी योर वीज़ा डॉक्यूमेंटेशन इज़ मेजर थिंग जो आपको अपना टाइमली वीज़ा लेने में हेल्प करेगी, राइट? Yes. तो जैसे इन्होंने बोला 1 डे ओल्ड फंड्स एक्सेप्टेबल हैं, बेसिक डॉक्यूमेंटेशन हैं जो आप एडमिशन के टाइम पे भी देते हैं, वीज़ा के टाइम पे भी देते हैं, और उसके बाद आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट होती है, राइट? सो रुचि, आप मुझे बताओ कि आपको इंडो यूरोपियन के बारे में कैसे पता चला? मेरे एक फ्रेंड ने रिकमेंड किया था मुझे इंडो यूरोपियन के बारे में, राइट, क्योंकि उसने भी अप्लाई किया था। ठीक है, स्वीडन के लिए? यस। ओके। और रुचि, अगर मैं बात करना चाहूँ, जो आपसे फर्स्ट एक कमिटमेंट होती है, राइट? जब आप एक काउंसलर के सामने आप बैठते हो, आपसे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी जाती होंगी अबाउट योर यूनिवर्सिटी, एम्बेसी, कुछ खर्चे हैं जो एम्बेसी लेगी, कुछ खर्चे हैं जो इंडो यूरोपियन अपने एज एन कंसल्टेंसी सर्विस भी लेगा। तो क्या फ्रॉम द डे 1 टिल आज की डेट में क्या कहीं पे कुछ ऐसा डिफरेंस है चीज़ें? जैसे कई बार स्टूडेंट्स बोलते हैं, अप्लाई करने से पहले बच्चा बोलता है मैम कोई हिडन कॉस्ट तो नहीं है इसमें, राइट? तो क्या ऐसा कुछ आपके एक्सपीरियंस से कभी आया है? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। जो फर्स्ट डे कमिटमेंट थी वही आज तक है उनकी, और मेरा एक्सपीरियंस इनके साथ बहुत अच्छा रहा है। ओके, सो अगर मैं रेटिंग्स की बात करूँ, हाउ वुड यू रेट आवर ओवरऑल परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस? जो आपके केस ऑफिसर्स आपसे बात करते होंगे, जो आपको मेरी काउंसलर ने फर्स्ट टाइम पे दिया होगा, तो अगर मैं ओवरऑल रेटिंग की बात करूँ आउट ऑफ 10, आप कितने स्कोर दोगे? आई गिव 10 out of 10 because the overall journey with Indo European was really good, and I'm very happy because I got my visa very soon. Any message to my future students, future viewers जो अभी ये वीडियो देख रहे होंगे हमारे साथ? अगर कोई स्टूडेंट अप्लाई करना चाहता है अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए अब्रॉड, तो मैं उनको वेरी क्लियर एक मैसेज देना चाहती हूँ कि वो इंडो यूरोपियन एजेंसी से कांटेक्ट करें, क्योंकि वे बहुत ही अच्छा गाइड करते हैं अपने स्टूडेंट को फॉर फर्दर स्टडीज़ के लिए, एंड उनके पास बहुत अच्छा कोऑपरेटिव स्टाफ है जो आपकी बहुत हेल्प करेगा। So please contact with this Indo-European agency. So students, जैसे अभी हमने रुचि से बात करी, फिर भी मैं लास्ट में आपको इस वीडियो खत्म होने से पहले ज़रूर बताऊंगी, स्वीडन एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे आप फाइनेंशियल्स के बेसिस पे बहुत इजीली अप्लाई कर सकते हो। 1 डे ओल्ड फंड्स एक्सेप्टेबल हैं इफ़ यू आर मैरिड एंड इफ़ यू वांटेड टू अप्लाई टुगेदर विद योर स्पाउस, और इवन अगर आपके स्पाउस स्वीडन में है और अगर अप्लाई भी करना चाहते हैं, यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट माई कॉल सेंटर टीम। Thank you so much. Thank you for watching Indo-European YouTube channel, and thank you, Ruchi. Thank you. We will come back to you with another successful story soon. Thank you. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.